Deepak Chauhan from Gorakhpur, Uttar Pradesh. Today we have discussed about the syllabus of BTech first year, semester 1, AAS 101C या AAS 201C. Course name is, which means subject name is Quantum Physics and Electronic Sensor. There are three credit course. This is employability, skill development and entrepreneurship. Course outcome. To understand the foundation concept of principle of quantum mechanics, to understand the quantum mechanics principle governing the electronics properties of solid, to develop the comprehensive understanding of the fundamental laws governing electric and magnetic field and their roles in electronics equipment, to understand the dielectric and magnetic material and their roles in various technological devices and systems, to comprehend the principle and application of photonics. This is the course outcome. Now we proceed from the what is basically weightage and what is the course in this subject. The Unit 1 course content is Fundamental of Quantum Mechanics. Inadequacy of Classical Mechanics, which means classical mechanics क्या होता है, de Broglie concept, de Broglie theorem, de Broglie concept क्या होता है wave matter में, diversion and German experiment. This is very important for German experiment. Wave packet, phase velocity, group velocity, Heisenberg uncertainty principle and its application, time dependent and time independent Schrodinger wave equation. This is again very important, time independent and time dependent Schrodinger wave equation. Particle conformed in one dimension box, wave function and physical interpretation. This is the of unit 1 of physics. Now the second unit is quantum theory of solids. अब सॉलिड पे कैसे क्वांटम थ्योरी काम करता है उसके बारे में पढ़ना है. जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी बैंड इन सॉलिड, बैंड गैप, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इफेक्टिव मास, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, इंस्टेटिव एंड एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एंड फर्मी लेवल. बेसिकली इसमें क्या पढ़ना है, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस, एक सॉलिड लिक्विड गैस 3 स्टेट होता है. उसमें क्वांटम थ्योरी ऑफ सॉलिड में क्या पढ़ना है कि वो सॉलिड के बारे में पढ़ना है कि इसमें इंसुलेटर कैसे काम करता है, कंडक्टर कैसे काम करता है, सेमीकंडक्टर क्या काम करता है. इंसुलेटर जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो उसको इंडक्टर बोलते हैं. कैपेसिटर कंडक्टर, कंडक्टर जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो. सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो विद इंसुलेटर जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी पास ही ना हो उसको बोलते हैं इंसुलेटर. कंडक्टर जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी पास होता है. उसी तरह यहाँ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसके अंदर डोपिंग किया था उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर का ही सब पार्ट है. नाउ प्रोसीड फ्रॉम यूनिट 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, EMFT बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी. इसमें क्या है, बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. मतलब बेसिक लॉ देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक लॉ क्या होता है, मैग्नेटिज्म का बेसिक लॉ क्या होता है, जैसे कैसे पता करें मैग्नेटिज्म है या नहीं है, कैसे पता करें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. कंडक्टिविटी इक्वेशन फॉर करंट डेंसिटी, displacement current, Maxwell equation in integral and differential form, Maxwell equation in vacuum and in conducting medium, Pauling vector, Pauling theorem, plane electromagnetic wave in vacuum and in conducting medium, and depth skin depth. Basically depth skin depth is very important. Now proceed from unit 4 dielectric and magnetic material. Dielectric material क्या होता है, dielectric material, dielectric constant, electric displacement, polarization vector, electric susceptibility, polarization mechanics, application of dielectric material. ये सब आएगा किसमें, dielectric material के अंदर है. मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी, डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. हिस्टेरेसिस लॉस ऐसे बनता है बेसिकली, हिस्टेरेसिस लॉस जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ग्राफ ऐसे अप जाता है फिर डाउन होता है फिर अगेन डाउन होता है, इससे बनता है ससेसिबिलिटी. इसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस. इसका कर्व होता है हिस्टेरेसिस लॉस का. कोरेसिविटी
Remanence, importance of stresses, curve application, and magnetic material. This is all about of Unit 4. Now proceed to Unit 5. Unit 5 is Phototronics. Phototronics में दो पार्ट है, फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर. फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है? फंडामेंटल आइडिया इसके अंदर है अबाउट फाइबर ऑप्टिक्स. एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस कोड, न्यूमेरिकल एपर्चर, एप्लीकेशन ऑफ लाइट propagation in optics fiber, attenuation and attenuation coefficient in fiber. This is all about of fiber optics. Now proceed from laser. Laser में क्या क्या आ रहा है? Interaction of radiation with matter जैसे absorption, spontaneous and simulated emission. Principle of laser operation जैसे Einstein coefficient, Ruby laser, helium neon laser and laser application. This is all about of Unit 5. What is the basically course outcome? कैसे माने कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, इससे क्या क्या हम लोग को सीख मिल रहा है, मतलब क्या चीज़ के ऑब्जेक्टिव निकल रहा है. तो कोर्स आउटकम में क्या है? यूनिट 1 में क्या है? अंडरस्टैंड द फाउंडेशन कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है उसके बारे में क्या क्या पता चल रहा है यूनिट 1 में. यूनिट 2 में क्या पता चल रहा है? अंडरस्टैंड द क्वांटम मैकेनिक्स प्रिंसिपल गवर्निंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड. जो सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी है, कैसे काम कर रहा है, क्या क्या हो रहा है, किससे उस पर वर्क हो रहा है, कैसे नहीं हो, ये पढ़ना है यूनिट 2 में. यूनिट 3 क्या बोल रहा है? अंडरस्टैंड द fundamental laws govern electric and magnetic field and their roles in magnetic electronic equipment. तो कैसे उसको इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से इसको कंपेयर करके काम कर सकते हैं, वो दिया. यूनिट 4 में क्या है? अंडरस्टैंड द डायलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मटेरियल एंड द रोल इन वेरियस टेक्नोलॉजिकल डिवाइस एंड सिस्टम. एंड यूनिट 5 इज वेरी शॉर्ट, एप्लीकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ फोटोट्रॉनिक्स. दिस इज ऑल अबाउट ऑफ